Good morning, students. Welcome back to the class 11 subject business study. Today we are going with the lecture number 12, chapter number 2, forms of business organization. As we have earlier seen the sole proprietorship and then HUF, Hindu undivided family, we have seen features, merits, and demerits for both topics. Today we will carry forward a new topic known as partnership. In partnership, we will see how partnerships are being created, what act has been applied, and we will see the features of that particular partnership forms, what kind of features are there, and then we will see merits and demerits in next video, and we will carry forward this partnership topic. The partnership topic is a lengthy topic. That's why it will take near about 2 to 3 more videos to complete that partnership topics. So let's begin with the partnership. What is partnership first? Partnership, how the partnership has been started. As it has been mentioned in the point, the limits of sole proprietorship and Hindu undivided family business gives the birth to partnership. As you know that certain limitations are there in sole proprietorship and Hindu undivided family related to managerial skills, related to money, related to properties, related to content which they are using in the business. That kind of problems were being faced in sole proprietorship and Hindu undivided family. The registration process was being there in one unit, and in another unit there was no registration compulsory. So that the concept which has been framed sole proprietorship and Hindu undivided family, now it has been new concern which is known as partnership. We will see partnership concept in detail. So lack of financial managerial capabilities under sole proprietorship paved to the way of partnership as a viable option. As in sole proprietorship or Hindu undivided family, sometimes finance problem would be there, sometimes managerial capability issues will be there in sole proprietorship and HUF. So it has been a part of enhancing partnership with the valuable option. If you don't want to do sole proprietorship, if you don't want to create HUF business, then you have a better option to start with partnership. In that you will get finance also, you will get a skilled person also for starting your business. Partnership serves as an answer to the need of great capital investment, varied skills and share of risk. पार्टनरशिप के अंदर तीन चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं. पहला, इन्वेस्टमेंट. दूसरा, स्किल्ड पार्टनर. तीसरा, आपका जो रिस्क होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स में. तो इसीलिए पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, इसको लॉन्ग रन तक चला सकते हो और इसको बाद में क्लोज भी कर सकते हो विद द प्रोसीजर. अब पार्टनरशिप के लिए कितने लोग ज़रूर है? मिनिमम 2, मैक्सिमम कैन बी 50 और 100, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. पार्टनरशिप एक्ट क्या है? अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं अभी. Partnership, in the way, can be treated as an extension of sole proprietorship. It is a form of organization in which two or more people agree to carry on a lawful business with their personal resources for the purpose of earning profit. In India, partnership is governed by Indian Partnership Act 1932. यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा लोग मिल के रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के लॉस को फॉलो करके लॉफुल बिजनेस को वो समझ के अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उनका मेन पर्पस होगा अर्निंग प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, मैं अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ पार्टनरशिप, तो मेरे साथ में 2-3 लोग और होंगे मेरे बिजनेस में. वो लोग मेरे बिजनेस में मनी लगाएंगे, मैं भी मनी लगाऊंगा. कुछ एक ऐसा भी पर्सन होगा जो पैसा नहीं लगाएगा लेकिन वो उसकी नॉलेज, उसका स्किल्स, उसका मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करेगा बिजनेस में, और उससे वो जो अर्न करेगा एज एन प्रॉफिट वो सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इंडिया के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जिससे हम लोग पार्टनरशिप को रजिस्टर कर सकते हैं.
According to the Indian Partnership Act, partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all and any one of them acting for all. यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा कहता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बहुत सारे जो पार्टनर्स है वो एग्रीड करते हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स पे, और उसमें सब मिलके काम कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही इंसान सबके लिए काम करेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट का परसेंटेज रख सकते हैं और ओरली भी बोल सकते हैं। सो आई hope that you have understand the thing what I want to say in this. In partnership, minimum 2 or maximum can be 50 or 100 members to start a partnership firm. In that, they all are agreed to share the profit and loss according to their shares, and they can work for the organization also. I hope what I am trying to say you are understanding. So let's begin with another topic considered as features of partnership. The first point of a feature is a formation, means foundation of a business. According to the partnership in governed partnership is governed by the Indian Partnership Act 1932. It comes into existence through a legal agreement amongst the partner in which terms and conditions, rules and regulations govern the relationship, sharing of profit and loss, and manner of conducting the business are specified. कोई भी बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना हो तो यहाँ पे पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कोई वॉलंटरी नहीं है। वेरस अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर क्या होता है, इसमें सारे पार्टनर्स की लीगल एग्रीमेंट क्रिएट की जाती है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। गवर्न फिर बाद में उनके रिलेशनशिप के बारे में लिखा जाता है कि वो एक पार्टनर है बिजनेस में, इनके शेयर रेशियो जो होते हैं उसको वो स्पेसिफाई करते हैं, साथ साथ में वो कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं वो भी मेंशन करते हैं। अभी आज के इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का अगर इस्तेमाल आप करते हो तो बहुत सारे नए गाइडलाइंस आ गए हैं पार्टनरशिप एक्ट में 2013 एंड 14 के रिलेटेड, तो उस रिलेशन में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। सो फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन में आप लीगल एग्रीमेंट क्रिएट करते हो जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स जो है वो मर्ज होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को वो एग्री करते हैं और उनका जो बिजनेस होगा वो सबके लिए कॉमन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी। अब यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो वो अपने पर्सनल असेट्स को भी बेच के वो डेप्ट पे करेंगे। अगर बिजनेस से पैसा नहीं निकल पा रहा है या बिजनेस के असेट्स से आपका पैसा नहीं निकल पा रहा है या रिकवरी नहीं हो पा रही, तो इन दी एंड पार्टनर जो जॉइंटली है या इंडिविजुअली है उनकी लायबिलिटीज उनको बेचनी ही पड़ेगी और वो प्रॉपर्टीज को पे करेंगे। अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टीज है उनकी वो बेचेंगे और जो लायबिलिटीज बची हुई है वो लायबिलिटीज के लिए वो पे करेंगे। Further, the partners are jointly and individually liable for the payment of debts. यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। हम लोगों ने सिर्फ एक एचयूएफ में ही पढ़ा था जहाँ पे मेंबर्स जो है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वेरस करता की अनलिमिटेड, सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड। यहाँ पे भी हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनर्स, तो पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। इसमें यही होगा कि अगर नुकसान हो जाता है तो कंपनी का असेट्स बेचेंगे, लेकिन असेट्स बेचने के बाद में भी अगर आप पेमेंट का हिस्सा नहीं पे कर पा रहे हो तो जॉइंटली या इंडिविजुअली आप रिस्पॉन्सिबल हो कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो पेमेंट कंप्लीट करो। सो लेट्स सी व्हाट्स ज्वाइनिंग एन इंडिविजुअल वन बाय वन। Jointly, all the partners are responsible for the debts and they contribute in proportion of their shares of business as such as liable to their extent. यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर ये लोगों का डेप्थ भी डिवाइड हो जाता है। जैसे तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर्स में हम लोगों को शेयर ऐसा है कि 5:2:3। अगर ये रेशियो है तो अगर जॉइंट पार्टनरशिप में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं
तो जिसके पास 5 शेयर्स हैं वो 5% 5 रेशियो वाला जो है वो हाई पे करेगा, 3 रेशियो वाला उससे कम पे करेगा, 2 रेशियो वाला उससे कम पे करेगा। तो वो उनके परसेंटेजेस के बेस पे पेमेंट करते हैं। Next is individual. Each partner can be held responsible to repay the debt of the business. However, such partners are the right to recover the proportion contribution from other partners. In this case, one individual can sell out their personal property and the debts has been cleared by that particular one cell, but that one partner is held responsible to recover in the proportion of contribution from other partners. यहाँ पे सिंपल वर्ड में एक इंडिविजुअल पार्टनर सारा डेट पे कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर पार्टनर्स, बट इन रिकवरी वो अपने पार्टनर्स के पास से कंट्रीब्यूटिंग पोर्शन के बेस पे पेमेंट रिसीव कर सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, रिस्क बेयरिंग। हमने पहले से ही पढ़ा है कि जितना ज़्यादा बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स बेयर हो सकता है, लेकिन रिस्क लेने में एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर रिस्क ज़्यादा लोगे तो नुकसान अगर हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। द पार्टनर्स बेयर द रिस्क इन्वॉल्व इन running a business as a team. The reward of risk bearing comes in the form of profit, which are being shared by the partners into agreed ratio. एग्रीड रेशियो का एग्जाम्पल मैं दिया 1:1 या फिर बाद में 3:5:2। ये रेशियो जो होते हैं इसमें आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने रिस्क लिया तो रिस्क लेने पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट को आप इक्वली या एग्रीड रेशियो पे शेयर कर देते हो। However, in the event of losses, they also share the losses in the same ratio. अगर नुकसान हो गया तो उनका जो एग्रीड रेशियो है उस रेशियो में उनका लॉसेस भी काउंट होगा। पॉइंट नंबर 4 इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है, सारे पार्टनर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं और डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है एग्जैक्टली। in the partnership firm share amongst themselves the responsibilities of decision making and controlling for the day-to-day life activity. Decisions are generally taken with a mutual consent, thus the activities are managed through the joint efforts of all the partners. यहाँ पर एक इंडिविजुअल डिसीजन ले सकता है डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, या फिर सब मिल के अपना अपना प्रोपोर्शनल वर्क कर सकते हैं। सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है एज एन वर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हम सब पार्टनर्स से 5-6 सब पार्टनर्स हम बैठे हुए हैं, उन 5 पार्टनर्स को सबका अपना अपना रोल पता है, वो अपने रोल्स को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट लाने में। और यहाँ पे डिसीजन जब ली जाती है तो यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कर ले सकता है डिसीजन। हर किसी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो डिसीजन ले सकते हैं। और साथ साथ में कोई बड़ा एफर्ट अगर लेना है या कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो वो जॉइंटली अपना एफर्ट्स देके डिसीजन ले सकते हैं। कंट्रोलिंग की जब बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनके पास है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेस पे बिजनेस के अंदर वो कंट्रोलिंग लेकर आते हैं। पॉइंट नंबर 5 is continuity. Partnership gets automatically dissolved on the death, retirement, insolvency, insanity of any of its partner. However, if the remaining partner desire to continue, then they may not do so on the basis of new agreement. जब हम लोग पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है कि कोई एक पार्टनर अगर मर जाता है या रिटायरमेंट ले लेता है या फिर वो उसके पास उतना बैलेंस नहीं है, वो इनसफिशिएंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस बेस पे उसकी बिजनेस को हम लोग बंद कर देते हैं या पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे पार्टनर जो हैं जो डिजायर्ड रखते हैं कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो उन लोगों के लिए नया एग्रीमेंट बनेगा और नया शेयरिंग रेशियो क्रिएट होगा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है कोई भी एक पार्टनर के मरने पे या रिटायरमेंट पे या फिर उसकी इंसॉल्वेंसी पे। और अगर कोई नया फॉर एग्जांपल अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो नया एग्रीमेंट आपको जनरेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, मेंबरशिप।
अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है। देयर शुड बी मिनिमम 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर हमको पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करना है तो मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मैं इस एक्ट की बात कर रहा था जो बहुत सारे नए गाइडलाइंस लेकर आया था। तो यहाँ पर एक सेक्शन है 464 जिसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 में बनाया गया है, जिसमें ऐसा लिखा है कि प्रोवाइडिंग दैट नंबर ऑफ पर्सन्स इन एनी पार्टनरशिप shall not exceed 100 subject to the limit prescription in rules। यहाँ पे ऐसा कहा है कि कोई भी हालत में पार्टनरशिप फर्म के अंदर 100 मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। रूल 10 ऑफ द कंपनी Miscellaneous Rules 2014 provides that no partner shall be formed partnership shall be formed consist of more than 50%, so limit is now is 50 partners। ये जो 100 है वो 2013 में आया था, लेकिन अब नया 2014 का जो नया रूल बना था कंपनीज रूल्स के अंदर, इसमें ऐसा कहा गया कि जो पार्टनरशिप फर्म अगर स्टार्ट होती है तो उसके अंदर 50 से ज़्यादा मेंबर हो नहीं सकते। तो ये एक मेंबरशिप की कैटेगरी है जिसके अंदर मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, लेकिन 2013 के एक्ट में ऐसा कहा गया था कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन फिर बाद में रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज रूल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आया जो 2014 में किया गया था। उसके अंदर ऐसा कहा गया कि मोर देन 50 मेंबर्स पार्टनरशिप फॉर्म में हो ही नहीं सकते। तो अभी के करंट सिचुएशन में ये लिखा गया है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, म्यूचुअल एजेंसी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप बिजनेस is carried on by all or any one of the partner acting for all। It means every partner acts in the capability of an agent as well as a principal। यहाँ पे ऐसा कहा है कि म्यूचुअल एजेंसी की बात हुई तो एक कंपनी के अंदर एक इंडिविजुअल सबके लिए काम कर सकता है या फिर सारे मिलकर उस बिजनेस के लिए काम कर सकते हैं, और इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये एजेंट भी बन सकते हैं और साथ साथ में प्रिंसिपल पर्सन भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही इंडिविजुअल सबके लिए डिसीजन ले सकता है या फिर सब मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले सकते हैं। As an agent, he represents other partners and thereby bind them through his act। यहाँ पर ऐसा है कि अगर एक इंडिविजुअल खाली काम कर रहा है तो दूसरे पार्टनर्स के लिए वो डिसीजन लेगा। वेर एज प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे सब मिल के एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड डिस्कशन ले सकते हैं। एज अ प्रिंसिपल ही इज बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ एन अदर पार्टनर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो एक इंडिविजुअल जो है वो एज अ प्रिंसिपली खुद ही अपने हिसाब से दूसरे पार्टनर्स के रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर 7 फीचर्स। पार्टनरशिप का मीनिंग हमने देखा, फीचर्स देखे। Hope so. You have understood what I was trying to explain you. If any doubt occurs, just comment back. That's it for today. Thank you.